रिएक्शन रेट्स। सबसे पहले हम देखते हैं थियरीज ऑफ रिएक्शन रेट्स। देयर आर टू इम्पॉर्टेंट थियरीज टू रिएक्शन काइनेटिक्स। फर्स्ट कोलिजन थियरी एंड सेकेंड ट्रांजिशन स्टेट थियरी। टुडे वी विल स्टडी कोलिजन थियरी ऑफ रिएक्शन रेट्स. For a reaction to take place, it is must that there is collision between molecules. Due to collision, the old bond break and with the result, new rearrangement take place, forming new bonds and giving products. In collision theory, kinetics of the reaction is expressed in the form of kinetic molecular theory. Collision theory is based on the fact that when reactant molecules A and B come very close and collide, reaction takes place. Thus, in a chemical reaction, collision between reactant molecule is the first step. This means rate of reaction depends on the number of collisions. Thus, rate of reaction is proportional to number of collision between reactant molecules. Practically, it was observed that rate of reaction is much less than the number of collisions between molecules. This is because first molecules come into activated state and only these active molecules take part in the reaction and form products. Postulates of collision theory. First postulate है इसमें, for a reaction to take place, the collisions between reacting molecules must occur. सबसे पहले collision होगा. Second, all the collisions do not lead to product formation. Third, only those collisions result in chemical reaction in which the colliding molecules possess a certain minimum amount of energy called threshold energy. Hence, threshold energy is defined as the minimum amount of energy which must be associated with the molecules. अगर molecules के पास में ये threshold energy है तभी वो क्या होगा, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होगा. So that their mutual collisions result in product formation. The collisions which yield product formation are called effective collisions. ठीक है, जो केवल प्रोडक्ट के जब कोलिजन मॉलिक्यूल्स के बीच में होके और प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है तो जिनसे कोलिजन विच इज प्रोडक्ट फॉर्मेशन, उन्हीं को हम केवल क्या कहेंगे, इफेक्टिव कोलिजन्स. द एक्टिव ऑफ मॉलिक्यूल्स कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन. द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज डिफाइंड एज द एक्सेस एनर्जी दैट द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स एक्वायर टू अटेन द थ्रेशोल्ड एनर्जी इन ऑर्डर टू अंडरगो केमिकल चेंज. जैसे फिगर 1 में हमें देखते हैं, एक्स एक्सिस पे आपके है प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन और वाई एक्सिस पे है एनर्जी. यहाँ पे रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है. ये रिएक्टेंट है, जो प्रोडक्ट है. यहाँ पर ये रिएक्टेंट के पास जो एनर्जी ये E1 से हमने शो किया, प्रोडक्ट की जो एनर्जी है E से शो किया है. ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है. ठीक है, ये इतनी जो ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है और रिएक्टेंट और थ्रेशोल्ड एनर्जी के बीच में ये क्या हो गया कि एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड प्रोसेस. ठीक है, सिमिलरली थ्रेशोल्ड एनर्जी और जो प्रोडक्ट के बीच की ये जो एनर्जी है ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन. ये एनर्जी बैरियर है. अगर किसी मॉलिक्यूल के पास में इस थ्रेशोल्ड एनर्जी को क्रॉस कर जाता है अगर वो, तभी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा. अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम एनर्जी है तो वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा. सो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन E इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एनर्जी प्रोसेस बाय द मॉलिक्यूल. हियर डेल्टा E इज इक्वल टू हीट ऑफ रिएक्शन. Fourth postulate of collision theory is the colliding molecules must be properly oriented. मतलब collision हो रहा है उसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि उनका orientation जो है वो proper होना चाहिए. If the reaction is to take place, the colliding molecules must be properly oriented. If these molecules are not in proper orientation, product formation is not possible. The energy required for effective collisions between poorly oriented molecules is much more than the energy required for properly oriented collisions. तो collision theory में मेन ये है कि जब मॉलिक्यूल्स में collision होता है तो उनमें एक मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए, उनका ओरिएंटेशन प्रॉपर होना चाहिए, तभी वो जो है वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होंगे. अब हम इसमें देखते हैं मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ कोलिजन थियरी.
रिएक्शन है उसके लिए अगर कोलिजन थ्योरी का मैथमेटिकल ट्रीटमेंट देखते हैं तो सबसे पहले Z इज इक्वल टू हमें पता है नंबर ऑफ बाइनरी कोलिजन्स पर सेकेंड बिटवीन टू आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स इन 1 ml of gas. E is equal to energy of activation of the process. Then rate of reaction is given by dx upon dt is equal to किसके हो गया Z e raised to the power minus e upon RT, equation 1. But we know that for bimolecular reaction dx upon dt is equal to kx square. Second equation where k is equal to specific reaction rate, x is equal to concentration of the reactant. From equation 1 and 2 we get इन दोनों को हम इक्वल कर देंगे तो kx square is equal to z e raised to the power minus e upon RT. So k is equal to z upon x square e raised to the power minus e upon RT, equation number 3. और हम यहाँ पर z अपॉन एक्स स्क्वायर को हमने एक नया कांस्टेंट यूज किया है कैपिटल Z. सो k इज इक्वल टू z e रेज़्ड टू द पावर माइनस e अपॉन RT, इक्वेशन 4. इन इक्वेशन 4 z इज कॉल्ड कोलिजन नंबर और कोलिजन फ्रीक्वेंसी. इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट टाइम suffered by any one particle in 1 ml of gas. So Z is equal to collision frequency. Equation 4 is the mathematical statement of collision theory. अब अगर हम इसे अरेनियस इक्वेशन के साथ में अगर हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे कि अगर Z यहाँ जो फ्रीक्वेंसी फैक्टर है और अरेनियस इक्वेशन में जो A है जो फ्रीक्वेंसी फैक्टर है इन दोनों को यहाँ पर Z जो है वो तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, ये कोलिजन नंबर है और यहाँ A जो अरेनियस इक्वेशन में वो फ्रीक्वेंसी फैक्टर है. अगर सपोज A इज इक्वल टू Z है इन दैट केस ये क्या हो जाएगा आपका ये दोनों बराबर हो गए तो आप देखोगे कि ये आइडेंटिकल इक्वेशंस हो जाती है. सो कंपैरिजन ऑफ इक्वेशन 4 विद अरेनियस इक्वेशन. अरेनियस इक्वेशन इज K इज इक्वल टू A e raised to the power minus E upon RT where A is equal to frequency factor. Equation 4 is identical with Arrhenius equation if A is equal to Z. अब कोलिजन थ्योरी में जो वीकनेस है हमें पता है इसमें जो वैल्यू आती है फ्रीक्वेंसी फैक्टर की वैल्यू लेते हैं वो कम या ज़्यादा हो जाती है. तो वीकनेस ऑफ कोलिजन थ्योरी इसके वीकनेस क्या क्या है वो हम देखते हैं. द फॉलोइंग आर द वीकनेस. फर्स्ट, collision theory does not give any explanation for abnormally high rates. Second, collision theory fails to correlate steric factor P with the characteristic of reactant molecules. And third is collision theory is unable to explain reversible and complicated reactions. तो ये तीन वीकनेस है जिनके कारण और इसका कारण क्या है ये भी देख लेते हैं हम साथ में कि ये इससे की वीकनेस के कॉजेज क्या है. कॉजेज ऑफ वीकनेस ऑफ द कोलिजन थ्योरी. द फॉलोइंग आर द रीजंस फॉर द वीकनेस ऑफ कोलिजन थ्योरी. फर्स्ट इज इन कोलिजन थ्योरी द मैथमेटिकल कैलकुलेशन आर बेस्ड ऑन द assumptions that molecules are elastic hard sphere. Such assumptions is true only in ideal gases. आइडियल गैसेस में अब केवल ये हो सकता है कि जो मॉलिक्यूल है वो मान के नहीं चलते कि इलास्टिक और हार्ड स्फीयर है, लेकिन सब में ऐसा नहीं होता. तो फर्स्ट इसका कॉज ये है. सेकंड इज विद लार्जर मॉलिक्यूल्स मेनी कोलिजन्स वुड टेक प्लेस वेयर vulnerable reactive parts would not be brought together although molecules have high energy. In consequence, many such collisions of activated molecules become infructuous. The Steric factor P becomes much less than unity. Third, in the calculation for energy of activation, only translational energy has been considered. ठीक है, इसके अंदर हम रोटेशनल वाइब्रेशनल एनर्जी को कंसिडर नहीं करते, केवल इसमें ट्रांसलेशनल एनर्जी लेते हैं. सो नो अकाउंट इज टेकन ऑफ द internal motion of the reactive molecules. There may be contribution from rotational and vibrational motion towards energy of activation. तो जब हम केवल ट्रांसलेशनल एनर्जी को ही कंसिडर कर रहे हैं, रोटेशनल और वाइब्रेशनल को नहीं ले रहे हैं, तो इसकी वैल्यू चेंज आती है. If such contributions are appreciable, the observed rate of reaction will be greater than the calculated rate. And fourth is
collision theory is totally based on classical mechanism, which is very good and requires modifications. For the above reasons, correct theoretical prediction for reaction rate is difficult in case of reactions with large molecules. ठीक है, तो ये सारे इनके कॉजेस थे। तो अब इसमें क्या मॉडिफिकेशन करें कि हम कि इस थ्योरी को हम इसमें क्या मॉडिफिकेशन करें वो देखते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ कोलिजन थ्योरी, इसमें देयर आर सेवरल रिएक्शंस वेयर कैलकुलेटेड इन एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज ऑफ के डिफर बाइटली। In some cases, the rate constant were found to be much smaller than the predicted ones, the discrepancy being much larger for complex molecules. Thus, in order to account for the deviations, a factor P was introduced into equation 4 as follows. अगर हम एक फैक्टर P, जिसे हम क्या होते हैं प्रोबेबिलिटी फैक्टर, स्टेरिक फैक्टर बोलते हैं, उसको अगर हम ऐड कर देते हैं कोलिजन थ्योरी इक्वेशन के अंदर, तो हम इसके अंदर जो वीकनेसेस हैं कोलिजन थ्योरी की उनको काफ़ी हद तक दूर कर देते हैं। सो इसमें जो पी जो हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा इक्वेशन के इज इक्वल टू पी जेड ई रेज़ टू द पावर माइनस ई अपॉन आर टी, इक्वेशन नंबर 5, वेयर पी इज कॉल्ड स्टेरिक फैक्टर और प्रोबेबिलिटी फैक्टर। द वैल्यू ऑफ पी वेरीज फ्रॉम 1 to 10 cases p is as large as 10 to the power 6। सो अगर हम इसको मॉडिफाई करते हैं तो हम इसमें हमें एक फैक्टर ऐड करना पड़ता है जिसे हम स्टेरिक फैक्टर कहते हैं। स्टेरिक फैक्टर भी आपके कोर्स में है, तो हम इसका थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। व्हाट इज स्टेरिक फैक्टर, ये तो अभी आपको पता ही है कि हाँ कोलिजन थ्योरी में जब हम मॉडिफिकेशन करते हैं तो हमने इस फैक्टर को ऐड किया है। हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? द स्टेरिक फैक्टर यूजुअली डिनोटेड P is a quantity used in collision theory, also called the probability factor. The steric factor is defined as the ratio between the experimental value of the rate constant and the one predicted by collision theory. It can also be defined as the ratio between the pre-exponential factor and the collision frequency, and it is most often less than unity. Physically, the steric factor can be interpreted as the ratio of the cross section for reactive collisions to the total collision across section. A sufficient number of slow reactions are known which show that the phenomena is limited to few instances, and the equation k is equal to z e raised to the power minus e upon rt is reduces to, या मतलब हमने यहाँ पर क्या किया है P ऐड किया है, K इज इक्वल टू P जेड ई रेज़ टू द पावर माइनस ई अपॉन आर टी। ये भी हमने इसमें कोलिजन थ्योरी मॉडिफिकेशन में आपको इक्वेशन बताया है, वेयर P इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी फैक्टर और स्टेरिक फैक्टर, विच मेक्स अलाउंसेस फॉर इफेक्ट कॉजिंग डेविएशंस फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। The value of P varies from unity to 10 to the power minus 8 depending upon the nature of the reaction. Anomalies were also found to exist in liquid systems. These were assumed to be due to solvent effects, but in some cases, these were found to be present in gaseous system also. So, this is about hysteric factor. तो आज आपके दो टॉपिक हमने कवर किए हैं, जिसके अंदर कोलिजन थ्योरी लिया है। कोलिजन थ्योरी का मेन है कि मॉलिक्यूल्स जो है उनके अंदर मेन जो आपके आ गया है, इसको इस तरह से शॉर्ट में कि मेन हमने इसमें क्या है, मेन पॉइंट्स ऑफ कोलिजन थ्योरी आ गए। कोलिजन्स बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, सेकंड एक्टिवेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, और थर्ड ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एट द टाइम ऑफ कोलिजन। ठीक है, और जिसके पास में मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी होगा, प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा, वो ही जो है वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होंगे। और इसकी हमने जो शॉर्टकमिंग्स है, वीकनेस है, वो ले लिया, मॉडिफिकेशन लिया और स्टेरिक फैक्टर लिया। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे। आपका नेक्स्ट टॉपिक है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। हमने थ्योरीज के अंदर दो है, कोलिजन थ्योरी, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी है। सो नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। इसी में हम अरेनियस इक्वेशन ले लेंगे। ठीक है, कि अरेनियस इक्वेशन एंड द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी, तो दो टॉपिक आपके नेक्स्ट टाइम पे कवर हो जाएंगे। ठीक है, ओके।
Thank you. Have a nice day.